नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार प्रोफेसर साहब, hearty welcome to you. Wishing Thank you you a sir. wonderful Friday morning, and students are yours, ITFT is yours, class is yours. Please go ahead, Professor Saab. Hello. Professor Saab, please go ahead. सर ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਹੀ ਦੋ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਾਂ तो फिर तुसी ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾ ਜੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਿਊਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੀਪੀਟੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈਟ them come। और सर चलो मैं हाले म्यूट कर देना।
Hello, good morning. Janvi, Sir. hello. गुड मॉर्निंग. मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है. अच्छा ठीक है. तो आपकी कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है पीछे, लेकिन जो कास्ट अकाउंटिंग जो हम आज शुरू कर रहे हैं ना, इसको कोलैबोरेट करेंगे उसके साथ, क्या कहते हैं, फाइनल काउंट के साथ. तो आपको ये मालूम होएगा कि आइटम्स को कैसे क्लासिफाई करना है. We have to classify different items into different types of cost. तो उससे वो क्लैरिटी फाइनल काउंट की भी स्ट्रेंथन होगी और साथ साथ कास्ट काउंटिंग की भी क्लैरिटी स्ट्रेंथन होगी. ठीक है. ओके. ठीक है. यस सर. ठीक है. तो इसी से हम वो कर रहे हैं कि ताकि एवरीथिंग शुड बी स्ट्रेंथन. ठीक है. तो इसके साथ नेक्स्ट जो है ना, आपको जो स्लाइड देंगे कास्ट अकाउंटिंग के, मैंने ना पेपर में दो तरह के ये दो क्वेश्चंस डाले हुए हैं. एक मार्जिनल कॉस्टिंग है और एक ये कास्ट अकाउंटिंग की कॉस्ट शीट है. ठीक. तो मेरा जो यही प्लान है कि कॉस्ट शीट और मार्जिनल कॉस्टिंग को कल तक मैं इसको समाप्त करके ना नेक्स्ट वीक में इसको फिर एक बार रिवाइज कर दूंगा एक लेक्चर में. इससे एवरीथिंग विल बी क्लियर. तो स्टूडेंट अभी आए नहीं है. आई एम वेटिंग फॉर द स्टूडेंट. दे आर नाउ 4 पार्टिसिपेंट. संगीता बियोंग, संगीता बियोंग, संगीता, संगीता, संगीता. हाँ. Should I start now? Today we shall talk about costing for managers. Why there is need for cost accounting? Why there is need for cost accounting in the present era of competitive rivalry at global level and greater pressure to become cost efficient? Increasing expectations of the customers for quality, compelling the company to innovate on continuous basis. If you want to survive and thrive in the environment, either you should follow the cost leadership strategy or you should do something different. Now, emphasis is shifting from traditional accounting to sustainability. Now there is emphasis on sustainability because we have to do justice with not only profits but also with people and planet. And companies have to rely upon cost accounting for identifying, measuring, communicating, and focusing the attention on key areas of associated cost. We want to attain cost leadership, and how we can attain cost leadership? This is the question. सर क्वेश्चन रिपीट करना. How we can attain cost leadership? What will be the role of cost accounting in attaining cost leadership? Because there is competitive rivalry at global level and there is pressure to become cost efficient. Customers' expectations for the quality goods are increasing. So we have to. Yeah. Your voice is Kya? breaking. My voice is breaking. Now is it fine now? Hello, is it fine now? Yes, sir. Now the emphasis is shifting on the sustainability because we have to.
क्या ये इंटरनेट की प्रॉब्लम है? Okay, sir. My internet connection is unstable. Now it is fine now. The companies, Yes, sir, they yes. have to rely, they have to rely upon cost accounting for identifying, measuring, communicating, and focusing the attention on the key areas associated with cost. We have to attain cost leadership. And how we can attain? Here the role of cost accountant. Here the role of accountant. Management accounting is also includes cost accounting for taking decision regarding managers. Okay, accountants have to collect, classify, measure, and communicate the cost not only for financial accounting purposes directed at reporting to the external parties, but they have to supply information to management to identify the key areas. So the role of accountant is also increasing in these days. Where to focus the attention? This is a question. One is cost efficiency. It is targeted at continuous reduction in cost of the product by identifying different activities of value chain analysis. जैसे procurement करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और आफ्टर सेल सर्विस परफॉर्म करते हैं, या एडवर्टाइजमेंट करते हैं, या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की एक्टिविटीज होती हैं. We have to identify the areas where we have to reduce the cost. Then customer expectations are growing. They want quality. What is meant by quality? Quality means conformance to customer's requirement that compels the company to integrate the whole seamless system in the total quality management. We have to devise. Now there is new participant, and now there is time to develop new products in the light of fast changing technology. Product life cycles are decreasing. We have to introduce new products. So there is time is very short to respond to customer demand at very speed and ease. Innovation and creativity are targeted at introduction of new product line, new lifeline to the existing product life cycle, or reduction in the associated cost as per generic. ये generic strategy होती है, जो overall strategy होती है कंपनी की, चाहे वो cost efficiency की हो या differential product strategy हो. देखिए आप टूरिज्म में हैं, एयरलाइन जैसे इंडिगो की स्ट्रेटेजी है कॉस्ट एफिशिएंसी, तो वहां बॉटल्स भी कस्टमर को परचेज करनी होती हैं, ठीक है, वहां बॉटल्स भी परचेज करनी होती हैं, पानी की बॉटल्स भी परचेज करनी होती हैं. देन या फिर वो डिफरेंट तरह की वो एयरलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करें. इसी तरह टूरिज्म में भी है. They have to innovate the strategy in such a way either they can attract the customer through cost efficiency, or they can provide some differential services. Then sustainability is a new question, because the tourism, there is a question of sustainability, and sustainable tourism is also one of the area. So therefore we are promoting ecotourism and other concepts. Because of increasing pressure to control environmental costs through energy conservation,
resource conservation, product recycling, and control of pollution. We have to devise certain way. Clear? It is meant for the person who have joined it. पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने why there is cost accounting in the present era of competition advisory at global level. Their expectations are increasing. They want quality products. Therefore, company has to innovate on continuous basis. Now, we have to do justice with the planet. Therefore, sustainability has assumed the center of attention. Companies have to rely upon cost accounting for identifying, measuring, communicating, and focusing the attention on key areas of associated cost. So we have to attain cost leadership. For this, accountants' role has been assumed to greater importance. Accountant, they have to collect, classify, measure, and communicate costs, not only for financial accounting purposes, which is directed at reporting to the external parties, but they have to supply information to management to identify the key areas of success. जैसे आप टूरिज्म में जाते हैं तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी डेस्टिनेशन पे टूरिस्ट आता है और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. ठीक. Then where to focus attention? One is cost efficiency, which is targeted at continuous reduction in cost of products by identifying different activities of the value chain analysis. आप देखिए अपने प्रोडक्ट का वैल्यू चेन एनालिसिस करके देखें. वहां आपकी पहले रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, पैकिंग भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, आफ्टर सेल सर्विस परफॉर्म करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्ट्रेटजी परस्यू करते हैं. दिस इज कंसर्न्ड विद द कॉस्ट एफिशिएंसी. वी हैव टू कंट्रोल द कॉस्ट. जहां जहां हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, चाहे हम रॉ मटेरियल सस्ता या हम अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जो है ना वो एफिशिएंट रखें, या पैकिंग में कहां बचा सकते हैं, आफ्टर सेल सर्विस में कहां बचा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट में कहां बचा सकते हैं. वी हैव टू डू सर्टेन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर दैट. नाउ customers emphasis on the quality. Quality means conformance to customer requirement. तो इसके लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में इंटरनल कस्टमर की भी इन्वॉल्वमेंट होती है. जैसे आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है. अगर आप अच्छे एटीट्यूड से अपने एम्प्लॉइज को सर्विसेज देते हैं, अपने कुलीग से अच्छा ही रहते हैं, तो वी कैन फाइट द कॉम्पिटिटिव फोर्सेस इन अ बेटर एंड इफेक्टिव वे. This is the philosophy of total quality management. Total means involvement of the whole. Quality means according to the customer's requirement, and management is a system. Then there is time to develop new products in the light of fast changing technologies, leading to shorter product life cycles, introduction of new product ranges, as the time to respond is very marginal. We have to meet customer request at very greater speed and ease. तो वो भी देखना है. उसमें आपको ये सिनेरियोज हैं जिसमें आज की जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड कर रही हैं. Then they have to continuously innovate and be creative. It may be targeted at introduction of new product line, new life to the existing product life cycle, associated cost as per the generic strategy. जो cost efficiency यहाँ differential product line हो सकती है. क्वालिटी भी कस्टमर को देनी
है और कॉस्ट भी कंट्रोल करनी है, ये दोनों टारगेट हमने अचीव करने हैं। इसके बाद सस्टेनेबिलिटी है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर टू कंट्रोल द एनवायरमेंटल कॉस्ट थ्रू एनर्जी कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन, प्रोडक्ट रिसाइकलिंग एंड कंट्रोल फ्लूइड। तो इन सिनेरियो को देखते हुए अकाउंटेंट का रोल जो ना बढ़ गया है। व्हाट इज द रोल ऑफ accountant? They have to collect, communicate costs, not only for financial accounting purposes, for external reporting purposes, but also to supply information to identify the key areas of success and concern. What the accountant do? ये मैंने आपको बता दिया। ये key areas हैं जहां पे accountant ने focus करना है। Then what are the aims of cost accounting? Cost accounting का जो aims है, इसका देखिए AIMS, A for ascertainment of cost by appropriate identifications and measurement. And secondly, we have to report for external use. We have to report inventory to complete statutory requirement and managerial requirement. Then M stand for matching cost with the revenues. We have to match different costs with the revenues to know what is the accurate profit of a year. इसके लिए मैचिंग कंसेप्ट जो फॉलो करते हैं, उस मैचिंग कंसेप्ट में आपको ले जाता हूं। फाइनल अकाउंट्स आपने किए हैं, फाइनल अकाउंट्स में आप सेल्स रियलाइजेशन कंसेप्ट के अनुसार रिपोर्ट कर देते हैं। उसमें से जो कॉस्ट माइनस करते हैं, नंबर 1, those costs which are exactly concerned with the generation of those revenues, they are called as cost of goods sold. Secondly, जो रेवेन्यू पीरियड के साथ हैं, they are the period cost. फिर इसके बाद सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, फिक्स एसेट्स जो डेप्रिसिएशन की फॉर्म में है। फिर जो कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जिसका फ्यूचर में बेनिफिट नहीं है, they are also written off. Then we have to secure control over cost in the light of company's generic strategy. या तो ये कॉस्ट लीडरशिप हो सकती है जैसे इंडिगो की है, या डिफरेंशियल स्ट्रेटेजीज जैसे एप्पल है ना, वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स पेश करते हैं, लैपटॉप पेश करते हैं, लिनोवा वाले भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर देयर। तो देखिए लैपटॉप में भी वो डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। कोई भी कंपनी ले लिए, चाहे एप्पल ले लें, लिनोवा लें, या डेल लें, या एचपी लें, इनकी अलग अलग प्रोडक्ट रेंज है, अलग अलग कस्टमर है, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। उसी के हिसाब से वो लैपटॉप को डिजाइन करते हैं या उसी के हिसाब से वो बेचते हैं, लेकिन उन्होंने कॉस्ट भी कंट्रोल करनी है। ठीक है। So aims of cost accounting are: 1, ascertainment of cost, and second is inventory valuation, proper inventory valuation, then matching cost with the revenues, then S for securing control over the cost. What are the advantages of cost accounting? What are the advantages? Cost accounting offers the following advantages. Number 1, it is helpful in making decisions in bias-free manner. If you want to make decision whether to buy this product or another product, तो आप कौन सा लेंगे जिसकी कॉस्ट कम है,
फिर आप उसके बेनिफिट देखेंगे। अगर बेनिफिट सेम है तो जिसकी कॉस्ट कम है हम वही प्रोडक्ट लेते हैं। फॉर दिस वी मेक कैलकुलेशंस, देन इट इज हेल्पफुल इन inventory valuation. Inventory that are to be reported and identified with the inventory. फिर देखिए मल्टीनेशनल कारपोरेशन में ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रॉब्लम्स आती है। जैसे देखिए एक मल्टीनेशनल कारपोरेशन है जिसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन डिफरेंट कंट्रीज में है और बल्क ड्रग एक दूसरे को वो बेच रही है, तो कौन से प्राइस पे वो ट्रांसफर करें, ये कॉस्ट अकाउंटिंग आपको एरिया बता देगी। देन दे फोकस ऑन द की एरिया ऑफ सक्सेस, आइदर वो कॉस्ट लीडरशिप है या डिफरेंशियल है, तो इनोवेशन की कितनी कॉस्ट है वो एरिया रिपोर्ट करके बताती है कॉस्ट अकाउंटिंग। देन इट इज हेल्पफुल इन असेसिंग प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट्स हम लगाते हैं वो देखते हैं कि अगर हमने हिमाचल में प्रोजेक्ट लगाना है, प्लांट लगाना है, हमारे कितने एसेट्स लगेंगे, कितनी हमको इन्वेस्टमेंट करनी होगी और उसकी और रिटर्न क्या आएंगी, सेल्स कितनी होगी, हमारी उसके में से कॉस्ट कितनी लगेगी। तो इस तरह की वो कैलकुलेशन जो करते हैं ना, फॉर दिस कॉस्ट अकाउंटिंग इज वेरी हेल्पफुल। Then we have to assess the performance of different product divisions, department and individuals. Then we have to allocate different costs. तो वहां परफॉर्मेंस असेसमेंट में भी कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्पफुल है। Then it is helpful in to achieve overall strategic goal of the organization. प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रेटेजिक गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग भी हेल्पफुल होती है। क्लियर? दीज आर द एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। एक मिनट ये मैं आपसे पूछ लूं, अनुज शर्मा, अनुज 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 मिस्टर अनुज शर्मा, जानवी जानवी, संगीता, Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है? अनुज, Yes, sir. अनुज, यस सर। हाँ मेरी आवाज आ रही है? ये आपको पता चल गया कि नहीं जो मैंने ये करवाया है ना, ये कॉमर्स का भी स्टूडेंट ना हो उसको भी मालूम पड़ जाएगा। Then we have to calculate, we should know what are the different types of cost. One is on the basis of functions. जो फंक्शन के बेसिस पे प्रोडक्शन होती है, जो प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड कॉस्ट हैं जो फैक्ट्री में इंकर होती हैं, जैसे डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और जो फैक्ट्री के ऊपर के खर्चे हैं, ओवरहेड्स मींस ऊपर के खर्चे, जो फैक्ट्री के ऊपर के खर्चे हैं जैसे फैक्ट्री रेंट, रेट्स, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो उसको भी प्रोडक्शन कॉस्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कौन सी होती हैं? दीज आर द कॉस्ट व्हिच आर कंसर्न्ड विद ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। देन there are costs which are concerned with the stimulation of sales, जैसे एडवर्टाइजमेंट है, they are advertising cost. कुछ कॉस्ट हैं which are associated with sales,
facilitating distribution of goods to supplier, distributor and customer, they are called as distribution cost. इसकी एग्जांपल है डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन, कैरेज आउटवर्ड, ठीक। अनुज 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 हाँ जी पल्लवी, सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटे, ये तो मालूम हो रहा है ना? ठीक ही है। हाँ? यस सर, ठीक, यस सर, आ रहा है सर। ठीक है। बेसिकली आपसे पूछें कॉस्ट एक्सपेंसेस में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, कॉस्ट मींस द रिसोर्सेज सैक्रिफाइस्ड टू अटेन ए पर्टिकुलर थिंग। जो कॉस्ट का मतलब है ना, जो हम रिसोर्सेज सैक्रिफाइस करते हैं किसी चीज को ऑब्टेन करने के लिए, दे आर कॉल्ड एज कॉस्ट। जब ये एक्सपायर हो जाती हैं तो हम इसको एक्सपेंसेस कहते हैं। जब ये एक्सपायर हो जाती हैं मींस कि इसका हमने बेनिफिट ले लिया है, देन दे आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। अगर बेनिफिट नहीं लिया, अनएक्सपायर्ड हैं, देन दीज आर शोन एज एसेट्स इन द बैलेंस शीट। ये बात है, क्लियर? तो कॉस्ट की जो टाइप्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट, which are related with the production process in the factory, that include raw material, direct labor, factory overheads. जैसे आपको मैं बता दूं, एक फर्नीचर बनाने में, जैसे चेयर बनाने में कौन कौन सी कॉस्ट आती है, बता सकते हैं? बताइए अनुज जी, बताइए कौन कौन सी कॉस्ट आती है, बताइए अनुज। जानवी आप बताइए, पल्लवी आप बताइए। जो फर्नीचर अगर हमने तैयार करना है उसमें से उसको बनाने में कौन कौन सी कॉस्ट आएंगी? हाँ बेट, एक्सक्यूज मी, बताइए ना, बताइए। उसका जो रॉ मटेरियल है, उसकी जो लेबर है, हेलो, लेबर है, चलो, जो ऊपर के जो खर्चे हैं ना, जैसे वो जिसको हम पंजाबी में मेखे बोलते हैं या कील बोलते हैं, वो लगाने होते हैं, या कुछ वो पॉलिश करनी होती है, वो जो सभी जो ऊपर के खर्चे हैं उसको हम ओवरहेड बोलते हैं। ऊपर के खर्चे, दे आर कॉल्ड एज ओवरहेड्स। ऊपर के खर्चे को बोलते हैं ओवरहेड्स। ठीक है अनुज, 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 संगीता, देन देयर इज वन अनदर स्टूडेंट ना, ठीक है। तो कॉस्ट की जो टाइप्स है ना, अगर हम प्रोडक्शन पे लें तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, which is related with production process occurring in the factory, they are direct raw material, direct labor या factory overheads. Then there are administration costs which are related with the overall administration, which is related with the overall administration. जैसे डायरेक्टर्स की फीस है, बैंक है। Then there are selling costs which are concerned with the sales, like advertisement है, distribution है, cost है, which are concerned with the distribution of goods and services. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बैड डेट्स कहाँ आते हैं? बैड डेट्स, अनुज बताइए, बैड डेट्स कहाँ आने चाहिए? प्रोडक्शन कॉस्ट होनी चाहिए, प्रोडक्शन में आने चाहिए या सेलिंग में आने चाहिए या एडमिनिस्ट्रेशन में? सर प्रोडक्शन। बेटे प्रोडक्शन में नहीं है। बैड डेट्स क्यों होते हैं? क्योंकि हम क्रेडिट सेल करते हैं। क्रेडिट सेल क्यों करते हैं? क्रेडिट सेल क्यों करते हैं? ताकि हमारी डिमांड जो स्टिमुलेट हो, इसलिए बैड डेट्स होना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है।
बैड डेट्स हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, क्लियर है कि नहीं? अब हम इसकी यूज कहाँ करते हैं, ये फंक्शन के ऊपर इसका यह यूज है ना, वो कॉस्ट शीट तैयार करने के लिए करते हैं। इस कॉस्ट शीट पे आप ध्यान दीजिए, ये आपको नजर आ रही है? क्यों स्टूडेंट, ये ज्यादा तो नहीं छोटी होगी? Bad debts are selling and distribution cost because of credit sales. There are bad debts. Credit sales are made to generate sales. Bad debts. ओके, ये बैड डेट्स है, क्लियर? तो इसमें देखिए सबसे जो कॉस्ट शीट तैयार करनी है, पर्टिकुलर अमाउंट और पर यूनिट मैंने ले लिया। डायरेक्ट मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो कर दें तो इतना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हुआ है। देन डायरेक्ट लेबर, देन देयर आर चार्जेबल एक्सपेंसेस, इट इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट, इसको हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। देन देयर आर फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स फैक्ट्री के जो खर्चे हैं, जैसे फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री हीटिंग, फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं। अगर प्राइम कॉस्ट में, प्राइम कॉस्ट होती है डायरेक्ट कॉस्ट, इसमें फैक्ट्री के जो खर्चे ऐड कर दिए जाएं, देन इट कम्स टू वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट, इसका नाम दे देते हैं। इट इज इंकर्ड, या तो ये फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट, इट इज इंकर्ड। इसमें ऐड कर सकते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, देन इट इज कॉल्ड एज वर्क कॉस्ट। क्योंकि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग की इसमें एडजस्टमेंट करनी है, तभी तो ये वर्क कॉस्ट आएगी। अब वो वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट नाम एक ही है, इसके ये पर्यायवाची हैं। इसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर दें, जैसे ऑफिस रेंट, रेट, टैक्सेस, सैलरीज, डायरेक्टर फीस, डेप्रीसिएशन ऑफ फर्नीचर, कंप्यूटर। अगर मशीनरी का डेप्रीसिएशन है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड है, अगर मशीनरी का डेप्रीसिएशन है फिर वो फैक्ट्री ओवरहेड है। अगर फर्नीचर का, कंप्यूटर का डेप्रीसिएशन है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, बिकॉज दे आर रिलेटेड विद ऑफिस। ऑफिस के जितने खर्चे होते हैं ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में ऐड कर दिए जाते हैं। तो हमारी आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कर दें, देन इट कम्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर दें, जैसे सेलमैन की सैलरी है, एडवर्टाइजमेंट है, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल आएगी। और उसका जो कंपैरिजन करें सेल से तो डिफरेंस जो है ना वो प्रॉफिट आएगा। इज इट राइट और नॉट? बताइए बताइए, ये ठीक है कि नहीं? एक्सक्यूज मी, बताइए आप, ये ठीक है कि नहीं? अनुज, अनुज, अनुषा, यस सर। देन जानवी, पल्लवी, संगीता, ताना, Yes, sir. is it fine? No. यस सर। देन इसके बाद अगर कॉस्ट शीट की मैं इलैबोरेटेड फॉर्म देखता हूं तो ये आ जाती है।
थोड़े से मैंने ऐसे देखिए ना, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड है, कौन कौन से आते हैं, जैसे फैक्ट्री रेंट, रेट, टैक्सेस, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री सुपरविजन, फोरमैन सैलरी, अनप्रोडक्टिव वेजेस, एस्टिमेटिंग, ड्राइंग ऑफिस की सैलरी। ड्राइंग ऑफिस जो है ना, वो ड्राइंग से है, प्रोडक्शन की ड्राइंग से है, इसलिए ये फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे। लूज टूल जो राइट ऑफ किए हैं, उसका डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। मशीनरी का डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। देन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वो भी फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दें तो ये क्या बन जाता है, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट बन जाती है। जिसमें आप ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जैसे ऑफिस रेंट, रेट, टैक्सेस, सैलरी, डेप्रिसिएशन, तो देन इट इज कॉल्ड एज इसको क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड को, ओपनिंग को ऐड कर दें, क्लोजिंग को माइनस कर दें, तो वो आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कि इतने की हमने कॉस्ट जो है ना वो बेच दी है। देन इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जैसे सेलमैन की कमीशन है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, कैरेज आउटवर्ड हैं। कैरेज इनवर्ड तो मटेरियल में ऐड होते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन और डिलीवरी वैन, रॉयल्टी जो सेल बेसिस पे हैं, देन सेलमैन सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, दे आर कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर इसमें से सेल को फिगर को डिफरेंस ले तो वो प्रॉफिट बनता है। आपको कॉस्ट शीट का पता चल गया कि नहीं, हाँ या ना में बात करें, बताइए। स्टूडेंट अनुषा, पल्लवी, संगीता, तानिया, अनुज, पता चल गया ना? ठीक, इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देन इसके बाद आप देखेंगे कि कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी मैनेजरियल डिसीजन लेने हैं। देन वी हैव टू differentiate cost on the basis of variability. There are fixed costs which remain fixed whatsoever is the level of activity. Then there are variable costs which vary with the level of production. There are fixed costs जो फिक्स ही रहती हैं। जैसे मान लीजिए आपका ऑफिस का रेंट है या सेल पर्सन की सैलरी है। प्लीज म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। अनुज, अनुज, हाँ ठीक है। अब देखिए फिक्स कॉस्ट जैसे हैं, फैक्ट्री का रेंट है, ऑफिस की सैलरी है, दे विल रिमेन फिक्स्ड। वेरिएबल हैं, वो कैसे हैं, जैसे मटेरियल की कॉस्ट वो वेरिएबल है। कुछ कॉस्ट जो होती हैं वो सेमी वेरिएबल होती हैं। सेमी वेरिएबल कैसे होती हैं, कुछ पार्टली फिक्स्ड हैं और पार्टली वेरिएबल हैं। जैसे सेलमैन की कमीशन है, एक तो वो सेल के साथ वेरी करती है और कुछ उसको सैलरी दी जाती है, देन इट इज सेमी वेरिएबल। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, कुछ तो मीटर का किराया देना होता है और कुछ वो वेरी करती है, इट इज सेमी वेरिएबल। देन देयर आर स्टेप ऑफ कॉस्ट, जैसे देखिए आपकी जो कैपेसिटी है होटल की 50% है, तो आपको एक बस ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। अगर आप 50% से बढ़ जाती है, 60 या 70 हो जाती है, तो आपको एक और गाड़ी बस अरेंज करनी पड़ती है। देन इट इज कॉल्ड एज स्टेप अप कॉस्ट।
which remain fixed up to certain level of activity and then certainly jump up after that level of activity. They are called as step up cost. तो इसमें इसकी जो एप्लीकेशन है वो मार्जिनल कॉस्टिंग में करते हैं. ये कल मैं आपका जो सेशन है ना, 2 सेशन लूंगा, उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग क्लियर करवा दूंगा. मार्जिनल कॉस्टिंग में ये होता है कि कुछ कॉस्ट फिक्स रहती हैं और कुछ कॉस्ट जो होते हैं वो वेरिएबल होती हैं. अब फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को टोटल किया तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट. अब देखिए सेल्स हैं, एक पॉइंट है जब 0 है, मान लीजिए कि सेल कुछ नहीं हुई, तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो एक तरह का लॉस है, क्योंकि आपको वो इनकर करना पड़ा. जैसे सेल्स इंक्रीज होती हैं तो हमारा जो है ना लॉस वो रिकवर करना शुरू कर देता है. एक पॉइंट आता है यहाँ कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट इज ए पॉइंट व्हेन योर all your costs are recovered. That means when your sales are equal to total cost. इसके बाद जो कंपनी है वो प्रॉफिट कमाना शुरू करती है. सेल्स ऊपर होती हैं और कॉस्ट जो है वो नीचे होती है. This area is profit area, जो shaded area है. Then the difference between break-even point and sale, this is called as margin of safety. Margin of safety. ये clear है कि नहीं? Is it clear to you or not? हाँ? बताइए. Yes, sir. तो इसके बाद differentiate करते हैं product and period cost. Product costs are those costs that form part of the inventory and are set off against revenue in the form of cost of goods sold. These costs usually include direct material, direct labor, direct expenses, factory overheads. Under marginal costing technique, all variable costs are product costs, whereas under absorption costing, both fixed and variable costs are product cost. प्रोडक्ट कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्ट का पार्ट बनती है. एक होती है टेक्निक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों को लेते हैं, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं. देन पीरियड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट और इन्वेंटरी एंड आर directly set off against the revenues of a period. जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, रेंट ऑफ द ऑफिस है, तो ये पीरियड कॉस्ट है. क्लियर? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट कैन बी इजीली एंड इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट. जैसे मान लीजिए फर्नीचर में जो डायरेक्ट मटेरियल लगा वो उसकी डायरेक्ट कॉस्ट है. देन इसके बाद जो पॉलिश का खर्चा हुआ वो हम आइडेंटिफाई इजीली एंड इकोनॉमिकली नहीं कर सकते, तो इसको फिर हम फैक्ट्री ओवरहेड कह देते हैं. इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट कैन नॉट बी इजीली एंड इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट, but they form part of the overhead cost. These are systematically allocated, apportioned and absorbed. Okay. इसके बाद कुछ हमने मैनेजरियल डिसीजन लेने होते हैं, तो उसी के हिसाब से हम कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं. जैसे मार्जिनल कॉस्ट है, एक यूनिट हम एक्स्ट्रा बनाते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी आती है. आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which involves payment to outsider in the form of present cash outlay. They are our out of pocket cost.
प्राइसेस जब हमने रिसेशन में फिक्स अप करने होते हैं ना, तो हम देखते हैं कि हमारा खर्चा कितना हुआ, तो उसको हम कंपेयर कर देते हैं कि अगर हमारे 5 रुपये लगते हैं, 6 रुपये में हम प्रोडक्ट को बेच सकते हैं तो बिकने दो। अगर 5 रुपये लगाने के साथ 4 रुपये मिलते हैं तो सॉरी, कुछ नहीं करना। दो अल्टरनेटिव मेथड या एक्टिविटी की जितनी कॉस्ट डिफर करती है उसको हम डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं। जैसे 10,000 यूनिट तैयार करते हैं तो 2 लाख की कॉस्ट है, 10,000 एक करते हैं तो 2,01,000 की कॉस्ट है। दैट मीन्स 1,000 का डिफरेंस है, वो डिफरेंशियल कॉस्ट है। अगर हम ये प्रोजेक्ट हिमाचल में लगाते हैं तो हमारा 5 लाख का खर्चा आता है। अगर हम पंजाब में लगाते हैं तो 8 लाख का खर्चा आता है। मीन्स के जो 3 लाख का खर्चा है वो क्या है, डिफरेंशियल कॉस्ट है। देन sunk cost. Sunk cost are those costs which has already been incurred and are irrelevant or redundant for taking particular decision as they cannot be changed. इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने एक शू मेकर को कहा कि मेरे 12 नंबर का जूता बना दो, उसने 500 रुपया लगाकर आपका जूता तैयार कर दिया, तब आप कहते हैं कि मैंने नहीं लेना। चलो ठीक है। अब देखिए वो शू मेकर को ना एक और आदमी आता है, वो कहता है इसका जो सोल है ना स्पेशल लगा दो, 300 रुपए का वो लगेगा, तो मैं आपको 300 रुपया दे दूंगा और ये आपका शू उठा लूंगा। अब वो शू मेकर जो सोचता है कि मेरा तो 500 रुपया जो लगा था वो तो चला गया, अब मैं इसके ऊपर अगर मैं 100 रुपए का सोल लगाता हूं तो 300 में वो मिल जाता है। दैट मीन्स 200 रुपीज जो मेरा जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होगा। तो मेरे लिए जो पहली जो कॉस्ट है ना 500 रुपया, वो संक है, क्योंकि वो जूता कहीं और बिकना नहीं है। इसी तरह जो कंप्यूटर है, आपने i3 कंप्यूटर लिया था, उसकी अब वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू 10,000 है या 15,000 है। जब आपने दिमाग जो है ना वो बिठा ही लिया कि मैंने i7 लेना है, तो वो जो कॉस्ट ना i3 की वो संक है, because it has already incurred. Clear? Then opportunity cost are those costs which are associated with the benefit foregone by taking particular decision. जैसे देखिए आपका एजुकेशन का खर्चा कितना आता है। एक तो आप फीस देते हैं, अगर वहीं आप वो कहीं आप काम करते होते तो आपको 10-20 हजार रुपया कमा लेते हैं। दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यू हैव फॉरगॉन। लेकिन जो आपने एजुकेशन से वैल्यू ऐड किया है उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो जो आप 10-20 हजार रुपये, जो 20 हजार रुपया कमा लेते हैं ना 2-3 घंटे काम करके, अगर आप क्वालिटी की एजुकेशन लेंगे तो आपकी जो वैल्यू है ना वो आप 1 लाख भी या उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं, बिकॉज इट इज द एजुकेशन दैट मेक्स अ डिफरेंस। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होती हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, these are the costs involving immediate payment of cash to outsiders. Then conversion cost, जैसे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और जितनी जो कॉस्ट आती है दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्शन कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट होती हैं जो एक मैनेजर के डिसीजन के कंट्रोल हो सकती हैं, अनकंट्रोलेबल कंट्रोल नहीं हो सकती। So we will talk about
टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग कौन सी है? हिस्टोरिकल कॉस्ट को जब रिकॉर्ड करते हैं देन इट इज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है? फर्स्ट स्टैंडर्ड्स आर सेट, एक्चुअल्स आर कंपेयर्ड विद दो स्टैंडर्ड्स टू नो द डिफरेंसेस। मार्जिनल कॉस्टिंग में डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स में डिसीजन लेने के लिए। एब्जॉर्प्शन में फिक्स्ड और वेरिएबल को दोनों को प्रोडक्ट में ऐड करते हैं। डायरेक्ट कॉस्टिंग, इन दिस डायरेक्ट कॉस्टिंग we classify the cost into direct and indirect. Direct costs are those costs which can be easily and economically identified with the product. Uniform costing, when the whole industry is following the same principle, it is called a uniform costing. Next, जो आपको ये कॉस्ट शीट आपको तैयार करनी आनी चाहिए, जो मैंने पहले बता दिया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती हैं, प्रोडक्शन के बाद एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और उसी के हिसाब से हम ये जो है ना कॉस्ट शीट तैयार करते हैं। इसका परफॉर्म आपको आना चाहिए। अभी तक आपने फाइनल काउंट किया है ना? फाइनल काउंट में देखिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, कैरी इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्राय, ये सेल और क्लोजिंग स्टॉक, ये जितनी कॉस्ट है ना, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दें, दे आर कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जो इनडायरेक्ट एंड डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन देखिए बेटा, अगर तो मशीनरी का है फिर तो वो फैक्ट्री ओवरहेड है, लेकिन ट्रेडिंग में जो है ना, ट्रेडिंग एक्टिविटी डोमिनेट करती है, तो इसमें जो डेप्रिसिएशन होता है ना फर्नीचर का या कोई पैकिंग मशीन का, तो वो वहां डाल देते हैं। कैरेज आउटवर्ड, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। तो आप देखिए यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ जाते हैं। क्लियर? अब आपसे पूछेंगे फाइनल काउंट आपने कर लिया, ये देख लिया, ये कॉस्ट शीट में कहां लेंगे? दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट स्लाइड। रॉ मटेरियल प्राइम कॉस्ट, प्रोडक्टिव वेजेस प्राइम कॉस्ट, अनप्रोडक्टिव वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री लाइटिंग फैक्ट्री ओवरहेड, हीटिंग फैक्ट्री ओवरहेड, मोटिव पावर फैक्ट्री ओवरहेड, हॉलेजेस छकड़ा जो एक जगह से हम दूसरी जगह चीजों को लगाने के लिए यूज करते हैं, देयर हॉलेजेस। डायरेक्टर फीस वर्क्स की है तो फैक्ट्री में आते हैं, डायरेक्टर की है, ऑफिस की है तो हम एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे। तो इसी तरह से आपको ये क्लासीफाई करने आने चाहिए। बैड डेट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी वैन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये देख लीजिए। आज मैं इतना ही आपको करवाऊंगा, ठीक है सर? ठीक है डॉक्टर गुलशन शर्मा? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल जो है ना 10:30 बजे ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर थोड़ी सी ब्रेक लेकर फिर हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। कल हम 2 घंटे का रखेंगे जी, कल 2 सैटरडे घंटे का ऑप्टिमम यूज करेंगे जी। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, Thank you, बहुत sir. बहुत धन्यवाद। आपकी प्रेजेंटेशन बंद होगी तो मैं फिर इनके साथ डायरेक्टली बातचीत कर पाऊंगा। ठीक सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। अभी सभी लोग, पल्लवी, जानवी, बैंगिया, संगीता, और कौन जुड़ा है अपने साथ? मुझे और तो कोई नजर नहीं आया। बेसिकली प्रोफेसर साहब, मैं, पल्लवी, जानवी, बैंगिया एंड संगीता। अनु शर्मा है? नहीं है जी, अभी नहीं, वो चला गया ना, क्योंकि वो था। ठीक है जी, ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू प्रोफेसर। सो संगीता, पल्लवी, जाह्नवी, बैंगिया, आप लोगों को समझ आया पूरा? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। सबको समझ आया है? थोड़ा बहुत सर। वेरी गुड,
वेरी गुड। कल आपकी 2 घंटे की सेशन रहेगी। जो प्रोफेसर साहब ने आज पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस करो, उसको ध्यान से देखो, सब कुछ करो। और दूसरा, अपने सभी साथियों को बोलो, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास ले रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को हम चाहते हैं कि आप लोग कुछ सीख लें और आप लोग आगे, आपका पूरा एग्जाम है, पूरा पेपर है इस सब्जेक्ट का। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप बाकियों को भी बोलिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए, वो सब लोग भी इस कोर्स में सुबह आया करें। कल सुबह 10:30 बजे हम लोग पुनः सब एक बार इकट्ठे मिलेंगे। आज हम इसके बाद समाप्त करते हैं और कल हम सब लोग सुबह 10:30 बजे मिलेंगे। अच्छा नहीं लगता है कि मैं प्रोफेसर साहब के साथ वेट कर रहा होता हूँ और आप लोगों ने अभी जुड़ना होता है। कल जो सबसे पहले जुड़ेगा, पहले 5 बच्चों को कल इनाम दिया जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।